Everyone, how are you all? कैसे हैं आप सभी लोग? I hope you all must be having a great time. And now let us move forward in our series, which we had already started, where we are discussing UPSC's other important examinations like CAPF, CDS, and Geoscientist PYQs of last 5 years. Now this is the history part which is already going on, and here we are on the part 3. पार्ट 3 इज बेसिकली हम यहाँ पर 2022 ईयर के क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं. पार्ट 1 में हमने 2025 और 2024 के देखे हैं. पार्ट 2 में हमने 2023 का देखा है, राइट? सो आई होप दोज पीपल हु आर डायरेक्टली कमिंग ओवर हियर ट्राई टू वॉच इट फ्रॉम द फर्स्ट पार्ट ऑफ हिस्ट्री गाइस. आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, ये प्लेलिस्ट आप सर्च कर सकते हो, इसी में सुनने आई है इसमें, यू विल गेट द प्लेलिस्ट. देखो, ऑब्जेक्टिव एंड ऑल डिस्क्लेमर दैट व्हाट यू हैव टू टेक केयर, हाउ यू हैव टू प्रोसीड विद द सीरीज, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, बट अगेन आई एम टेलिंग यू वी आर यूटिलाइजिंग दीज लास्ट मंथ्स बिफोर द कमिंग अप ऑफ सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स. हम एक माइंडसेट बनाने की कोशिश कर रहे हैं वेयर वी आर ट्राइंग टू नो दैट व्हाट इज द यूपीएससी's क्वेश्चन बैंक. Now this is for all those people who have civil services prelims questions on their tips, guys. That means they have seen the PYQs well enough and now they want to solve more questions. So rather than going for some random questions now, go for the UPSC's PYQs. I have seen people are following this series, and really great to know that people are appreciating that too. I hope you will utilize the whole series every day. Just devote your 30 minutes to 1 hour over here into this series. And how you have to basically inculcate your note making, that also I have told you. Now without wasting any single time, let us move forward. Open up your history notebooks, all ancient, medieval and modern, and add these things over there. So when you will be revising, you should revise those points too, because that has been asked. Now 2022 questions we are going ahead. So over here, Geoscientist 2022. Objective of the class, देखो थोड़ा बहुत explain मैं इसलिए कर रहा हूँ because some people will be new over here. So over here, Geoscientist first of all we'll try to discuss, then CAPF important, then CDS. ठीक है? 2022. Already we have discussed 2025, 2024, 2023 in the last part of history. Subject wise, I am opening this up. ठीक है? I am like going ahead with it. Now let us see without wasting any time. Good questions you will see of history in 2022 prelims too. A bunch of old letters originally published in 1958 is a collection of letters written to and by. 2021 में सिविल सर्विसेज में एक क्वेश्चन आया अबाउट सॉन्ग्स फ्रॉम प्रिजन. ये बुक किसने लिखी है? आंसर वाज मोहनदास करमचंद गांधी, MK गांधी. Over here you will be seeing a bunch of old letters. These letters were basically written by जवाहरलाल नेहरू. So people know this. And ये जवाहरलाल नेहरू ने प्रेजेंट से लिखी थी to his daughter Indira Gandhi, guys. A bunch of old letters. So over here you will be seeing Jawaharlal Nehru, the first PM of India, wrote and published a book, A Bunch of Old Letters, in 1958. The book is the collection of letters that Nehru wrote to his daughter Indira Gandhi from 1928 to 1933, where he was imprisoned in various jails across India for his political activity. लिखा यहाँ पर गया, पब्लिश हुई 1958 आज़ादी के बाद. ट्राई टू अंडरस्टैंड. ये आप अपने कहीं पर आप लिख सकते हो. अगर आपने A4 साइज शीट इसके साथ खोल रखी है तो आप वो भी मेंशन कर सकते हो. देखो भाई, नोट मेकिंग अगेन इट इज इंपॉर्टेंट. मैं हाईलाइट कर रहा हूँ पिछले पार्ट्स में भी, जो स्टूडेंट फॉलो कर रहे हैं उनको तो समझ में आ चुका होगा, बट अगर आप ऐसे देख रहे हो तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आने वाले हैं, आपको याद नहीं रहेगा आखिरी टाइम पे, राइट? या तो आप इसकी नोट मेकिंग करो, दैट यू आर राइटिंग इट इन द A4 साइज शीट, और अपने नोट्स में ऐड कर रहे हो आप डायरेक्टली कहीं ना कहीं. ठीक है? सो लेट अस मूव फॉरवर्ड. दिस इज अगेन वेरी गुड क्वेश्चन. If I ask you, अभी ये क्वेश्चन मत देखो. If I ask you that who was the father of local self government in British era, local self government, so you will be seeing Lord Ripon, and Lord Ripon time frame was from 1880s to 1884. ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए. तो यहाँ पर आप देखोगे, अब ये देखो, local bodies first formed in British India between 1864 to 1868 were presided by 1864 to 1868. मैं बात कर रहा हूँ 1880s 1884 में लॉर्ड रिपन ने एक रेजोल्यूशन पास करा जिसके लिए हम बोलते हैं फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट. जब फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में बोल रहा हूँ, दैट मीन्स कहीं ना कहीं म्युनिसिपल इलेक्शंस जो हो रहे होंगे वो इलेक्शन के थ्रू हो रहे होंगे. दैट मीन्स जो इलेक्ट होगा वही इसका एग्जीक्यूटिव बनेगा ओवर हेयर.
लेकिन 1864 से लेके 1868 जब ये पहली बार फॉर्म हुए तो इसको प्रिजाइड कौन करता था? इलेक्टेड प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स? नो, ये तो लॉर्ड रिपन के टाइम पे करने लगे, इसीलिए हमने बोला लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ये अभी नहीं होगा। एल्डेस्ट मेंबर ऑफ द, नो, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट विल बी योर आंसर। सो द पावर वाज विद इन द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ओवर हियर। लॉर्ड रिपन ने 1880 में ये रेजोल्यूशन पास किया दैट नाउ दिस विल बी प्रिजाइडेड बाय द दीज इलेक्टेड प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स। ये लॉर्ड रिपन ने चेंज किया, ट्राई टू अंडरस्टैंड। ठीक है, तो ये पॉइंट हमें पता नहीं होता, लेकिन ये पूछा जा चुका ऑलरेडी बाय यूपीएससी। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। Let us move forward. Over here you will be seeing first local bodies formed during 1864-1868. The role of district magistrate you will be seeing, overseeing the function of these local bodies. ठीक है, Lord Ripon's role, later on he will be known as father of local self government. Very very important, add this to your notes guys. Again one tricky question, try to solve it. Pause करो और आंसर दो। राजा गुलाब सिंह acquired कश्मीर। अब ये पॉइंट हम सबने पढ़ा है when we were seeing the Anglo-Sikh War। अब ध्यान से देना, लोग कंफ्यूज होंगे अगर आपने आंसर ट्रीटी ऑफ लाहौर दिया है, देन दिस इज रॉन्ग। अब बताओ, ट्रीटी ऑफ भैरववाल भी नहीं हो सकता, ट्रीटी ऑफ सगोली इज रिलेटेड टू नेपाल, द लेफ्ट इज ट्रीटी ऑफ अमृतसर। आई विल बी टेलिंग यू हाउ, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस गाइस। आपने पढ़ा है एंग्लो सिख वॉर। फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर जब हुआ तो यू विल बी सीइंग सिख लॉस्ट, तो उन्होंने साइन क्या किया? ट्रीटी ऑफ लाहौर। अब इस ट्रीटी ऑफ लाहौर में दिस J&K was passed to whom? This was passed to English, Britishers। ठीक है, तो जम्मू एंड कश्मीर was ceded to English first of all। देन एक ट्रीटी साइन हुई बिटवीन राजा गुलाब सिंह एंड दिस इंग्लिश नोन एज ट्रीटी ऑफ अमृतसर। और ये ट्रीटी ऑफ अमृतसर अलग है, जरूरी नहीं है एक ही ट्रीटी ऑफ अमृतसर होगी। देखो, एक ट्रीटी ऑफ अमृतसर आपने 1809 में देखी थी बिटवीन महाराजा रंजीत सिंह एंड इंग्लिश, वो अलग है। ये ट्रीटी ऑफ अमृतसर इज बिटवीन राजा गुलाब सिंह एंड इंग्लिश ओवर हियर, एंड दिस इज राइट बिकॉज एज पर दिस ट्रीटी राजा गुलाब सिंह एक्वायर्ड कश्मीर, राइट। सी दिस, आफ्टर फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर यू विल बी सीइंग ट्रीटी ऑफ लाहौर हैपेंड। ट्रीटी ऑफ लाहौर में क्या प्रोविजन था? द सिख एम्पायर सीडेड टेरिटरीज टू द ब्रिटिश इंक्लूडिंग कश्मीर एंड वेर रिक्वायर्ड टू पे लार्ज इंडेमनिटी। फिर ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइन हुई, अनेबल टू इमीडिएटली पे द इंडेमनिटी, द लाहौर दरबार सीडेड कश्मीर एंड अदर टेरिटरीज टू ब्रिटिश, एंड द ब्रिटिश इन टर्न सोल्ड कश्मीर टू गुलाब सिंह द राजा ऑफ जम्मू फॉर 75 लाख रुपीज इन ट्रीटी ऑफ अमृतसर। आई होप दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यू नोट दिस डाउन, बिकॉज देखो लाहौर ये सब एंग्लो सिख वॉर में से आजकल डिटेल कोई नहीं पूछ रहा, treaties highlighted है। तो 2022 में this has already been asked by UPSC। See this question now। देखो, सती एक्ट was passed in abolition of सती एक्ट, practice of सती was outlawed in 1829। किसके एफर्ट्स के थ्रू? कौन था? वाइसरॉय बेंटिक। ठीक है, किसके एफर्ट्स थे? सोशल रिलीजियस रिफॉर्म, राजा राम मोहन रॉय। बट यहाँ पर क्या इन्होंने क्वेश्चन पूछा, देखो इतना पता होता, बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोमोलगेटेड रेगुलेशन। रेगुलेशन को बोलते क्या थे? तो वो रेगुलेशन 16 था, 17 था, 18 था या 19 था? पॉज करो एंड ट्राई टू आंसर। अब यूपीएससी ने यहाँ फोकस किया है, दो सिविल सर्विसेज में ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आएंगे वन वर्ड, बट अगेन आपका नॉलेज बेस तो इंक्रीज हो रहा है ना, कहाँ पर फोकस करोगे आप। तो यहाँ पर आंसर होगा रेगुलेशन 17 गाइस। सी दिस, द बंगाल सती रेगुलेशन और रेगुलेशन 17 1829 of the Bengal Code was legal act promulgated in British India, ठीक है, by the then Lord Bentinck। This was made the practice of sati basically as illegal in all jurisdiction of British India and subject to legal prosecution। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना, इट वाज रेगुलेशन 17। अब ये सब सीरीज करके आपको क्या लग रहा है, बाकी जो ये सीरीज देख रहा है और जो एनालाइज कर रहे हैं इन क्वेश्चंस को, आपका नॉलेज बेस इंक्रीज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू द अदर एस्पिरेंट्स हु आर नॉट फोकसिंग अपॉन दिस, समझ रहे हो? तो ये सारी चीजें आप ऐड करो। सी दिस क्वेश्चन नाउ, अगेन ट्रिकियर क्वेश्चन गाइस, ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है और बहुत रैंडम क्वेश्चन भी है। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज वन ऑफ द मेजर करेंसीज इन सर्कुलेशन इन इंडिया व्हेन द ईस्ट इंडिया कंपनी फर्स्ट कंसिडर्ड द इंट्रोडक्शन ऑफ यूनिफॉर्म करेंसी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब यूनिफॉर्मेशन लाने की कोशिश करी करेंसी में, जो सिल्वर रुपीज आप देखते हो, ठीक है, उससे पहले कौन सी पर्टिकुलर करेंसी प्रचलित थी, कौन सी करेंसी फेमस थी? यू विल बी सीइंग मद्रास सिल्वर रुपी विल बी फेमस ओवर हियर, ठीक है, इंपॉर्टेंट। यू सी दिस क्वेश्चन, हु इंट्रोड्यूस दिस पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट गाइस,
और ये मेंबर 1861 में भी ऐड हुआ कि एक पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट का एक मेंबर गवर्नर जनरल की काउंसिल में रहेगा। तो ये आंसर है आपका, ये इजी क्वेश्चन है, हर किसी को पता होता है, लॉर्ड डलहौसी। इंपॉर्टेंट, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, which one of the following statements about the तूफान दल्स of 1943 is not correct? It is not correct पूछा, not correct, ठीक है। Now you try to understand over here first, they blew up, देखो तूफान दल है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं फर्स्ट ऑफ ऑल यू ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट दे वर द पार्ट ऑफ प्रति सरकार। प्रति सरकार जो सतारा में फॉर्म हो रही थी पैरेलल गवर्नमेंट्स, वहां पर ये इसके पार्ट थे प्रति सरकार के। ट्राई टू अंडरस्टैंड, राइट, दिस इज राइट। They ran people court, this is also right. They blew up railway bridges, this is also right. The wrong is this, they organized constructive work. They were not following this constructive work, guys. ठीक है, तो ये आंसर रहेगा, काइंड ऑफ इजी आंसर आप इसमें देखोगे। तूफान दल्स over here, you will be seeing this. Pause the video, you can read about them. Now see the next question, easy question. Who were Pahadiyas? Very important, guys. Cultivators of Deccan? No, the forest dwellers of Rajmahal Hills. This is Pahadiya rebellion also you try to study, right? So this is right over here, the forest dwellers of Rajmahal Hills. Again, this is one easy question. जो easy question है उसमें ज़्यादा हम टाइम नहीं लगाएंगे। Which one of the following caused the ruin of rural artisan industries? Rural artisan industries ruin कैसे हुई, right? Flooding of Indian markets with machine-made products, goods on a mass scale that is cheaper. They were cheaper in prices. तो इसका ये सबसे बड़ा आप यहाँ पर देखोगे एग्जाम्पल, राइट। बाकी ऑप्शंस आपको इसके साथ फेवरेबल नहीं लगेंगे। अगेन इट वाज 2022, कंपैरेटिवली इतना टफ पेपर नहीं था, कुछ क्वेश्चंस अब्सर्ड हमेशा रहते हैं। अब्सर्ड मींस कुछ ना कुछ नया लाइकर आएंगे वो हर एक एग्जाम में, ठीक है। और सिविल सर्विसेज में तो ये सबसे ज्यादा आप देखते हो, तो यहाँ पर डायरेक्टली यू विल बी गेटिंग द आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपका। अब आप पूछते हो न्यूज़पेपर कौन से पढ़ने हैं, अगर आप सीरीज फॉलो कर रहे हो तो आपको ये 4 और पिछले में भी 2-3 क्वेश्चन ऐसे देख लिए थे न्यूज़पेपर्स वाले, राइट। तो आई होप आप कहीं ना कहीं इसकी अलग से लिस्ट बना रहे हो, क्योंकि आपको एक्स्ट्रा न्यूज़पेपर करने की जरूरत ही नहीं है, जो यूपीएससी ने ऑलरेडी पूछ लिया उस पर आप अपनी कमांड बनाओ, राइट। सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज अ नेशनलिस्ट न्यूज़पेपर पब्लिश्ड फ्रॉम बॉम्बे? अब ये आसान हो जाता है, ये कह रहे हैं कि कौन सा बॉम्बे से पब्लिश हुआ था। सोम प्रकाश, ये बंगाल, ऑलरेडी सोम आप नाम देख रहे हो यहाँ पर, बंगाल में पब्लिश हो रहा था। एडवोकेट, ये यूपी में पब्लिश हो रहा था। अकबर ए आम, ये लाहौर में पब्लिश हो रहा था, राइट। तो आंसर इज राष्ट्रगुप्तर एंड दिस वाज पब्लिश्ड बेसिकली बाय द पारसीज। दादा भाई नेहरूजी वगैरह आप इसमें देखोगे, राइट। ऑलरेडी यू स्टडी दिस टू, दिस इज राइट, ठीक है गाइस। सो यू हैव सीन जियो साइंटिस्ट 2022 PYQ now. Now we will be seeing CAPF PYQ, and that is of 2022. That is also history portion. Let us start with CAPF now. ठीक है, see this question. Which one of the following artworks was held by Sister Nivedita? Important, again important, very important I would say. Which one of the following artworks was held by Sister Nivedita as the masterpiece of Indian art? नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर 2 क्वेश्चन है। पहले तो फाइनेस्ट आर्ट, फर्स्ट मास्टरपीस ऑफ इंडियन आर्ट वाज भारत माता बाय अविंद्रनाथ टैगोर, आंसर तो ये है। बट हु वाज सिस्टर निवेदिता? सिस्टर निवेदिता वाज अ सोशल एक्टिविस्ट गाइस, शी वाज फ्रॉम आयरलैंड, ठीक है, एंड शी केम ओवर हियर इन इंडिया एंड मेड स्वामी विवेकानंद एज हर गुरु, राइट। शी वाज अ डिसाइपल ऑफ स्वामी विवेकानंद। मोर अबाउट हर यू कैन सर्च, ठीक है, सिस्टर निवेदिता। तो थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन आपको ध्यान में रखनी है, अगेन इंपॉर्टेंट, ठीक है। सी अगेन इजी क्वेश्चन, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। बैटल ऑफ राक्षसा तंगड़ी इज ऑल्सो नोन एज बैटल ऑफ तल्लीकोटा, एंड इसको एक और बैटल बोलते हैं। कैन यू राइट इट इन द कमेंट्स? आई हैव टोल्ड यू दैट दिस बैटल इज नोन बाय 3 नेम्स, राक्षस तंगड़ी, तल्लीकोटा, तो ये तो आंसर हो गया। दूसरा कौन सा है? दिस क्वेश्चन, अशोकन इंस्क्रिप्शन इन अफगानिस्तान आर रिटन इन विच ऑफ द वन ऑफ द फॉलोइंग? अब अशोकन इंस्क्रिप्शन, एक ये आपका मानसेहड़ा, शाहबाजगढ़ी, चलो मैं इसमें दिखाता हूं आपको। आप यहां पर देखोगे पाकिस्तान में मानसेहड़ा, शाहबाजगढ़ी, और ये कांधार इंस्क्रिप्शन आपका यहां पर है। ये दोनों लिखी हैं खरोष्टी में, ये दोनों लिखी हैं ग्रीक एरामिक में,
रेस्ट ऑफ द लिखिए ब्राह्मी में, और इन्हीं पीवाईक्यूज को एनालाइज करते हुए आपने ये भी देखा कि अशोकन इंस्क्रिप्शन ब्राह्मी विद रीजनल वेरिएशन, या आपने क्वेश्चन एनालाइज करते हुए ही पढ़ा है, राइट। ठीक है, ट्राई टू प्रैक्टिस कौन कौन सी कहां पर है। कैन यू नेम मी द गुजरात वन, ये अशोकन इंस्क्रिप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस महाराष्ट्र वन, कर्नाटका वन, दिस आंध्र प्रदेश वन, दो आपकी उड़ीसा में है, देहरादून में। दिस इज कालसी, गिरनार, सुपाड़ा, येरागुड्डी, नॉट येरागुड्डी, सन्नति, येरागुड्डी, धौली, जौगड़ा, राइट। तो आंसर क्या हो जाएगा, ये तो सिंपल है, ग्रीक अराबिक। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट कॉइन्स, कॉइन्स के ऊपर ऑलरेडी 2023 में क्वेश्चन देखा था। 200 BC 300 C इन इंडिया, इंडियन एंड सबकॉन्टिनेंट, नॉट करेक्ट पूछा है। तो इंडो ग्रीक्स इंट्रोड्यूस बाइलिंगुअल बाइस्क्रिप्ट लेजेंड्स ऑन देयर कॉइन्स, दिस माइट बी करेक्ट because Indo-Greeks were the first to introduce the gold coins. The Kushanas minted large quantities of gold coins as well as copper coins of low denomination. This can also be right. The Satavahanas issued coins of silver, copper, lead, and protein. This is also the right, also can be right. ठीक है, the wrong one is this D part. Absence of Nigama coins. Nigama coins are the special types of coins in Takshila region you will be seeing. And it suggests declining power and authority. No, it does not show that, right? तो ये आपका आंसर हो जाएगा। निगमा कॉइन्स के बारे में आपको यू हैव टू नो इट, लेट मी टेल यू ऑल्सो अबाउट निगमा कॉइन्स, ठीक है। तो ये आंसर है, बट ये सारी स्टेटमेंट करेक्ट है। दैट मीन सातवाना इशूड कॉइन्स ऑफ सारे में, कुशानाज ऑल्सो मिंटेड कॉइन्स, और यहाँ पर इंडोग्रीक्स ने आप देखोगे बाइलिंगुअल और बाइस्क्रिप्ट लेजेंड्स ये अपने कॉइन्स में लिखा करते हैं। तो ये सारी तीन स्टेटमेंट करेक्ट है, इस पे भी फोकस करो। लेट मी टेल यू अबाउट निगमा कॉइन्स। सी दिस गाइस, कॉइन ऑफ तक्षशिला। तक्षशिला में ये गिल्ड्स के द्वारा, बाय द गिल्ड्स यू विल बी सीइंग, दे विल बी पब्लिश, ठीक है, इन्हें गिल्ड कॉइन भी बोला जाता है। Until now, the legend of this coin has been read as Panchnemka, which was the 5 guilds or Panchnegama. ठीक है, the word negama is a Sanskrit word meaning trader. Very very important information. तो negama आपसे कैसे भी पूछा जा सकता है, राइट। ठीक है, आप इसको ध्यान में रखना, अपने नोट्स में इंक्लूड करके रखना। Now this is one easy question. I have already told you, वैदिक एज में जो पुरानी रिवर्स हैं, एंशिएंट नेम्स ध्यान में रखना, जिसमें पारुशिनी, why do you remember Parushini? It is Ravi river. I have told you to remember because on the banks of Parushini river, battle of 10 kings happened. तो पारुशिनी को मैच करो रावी से। अब ऐसे क्वेश्चन सिविल सर्विसेज में ज्यादा देखने को नहीं मिलते, नहीं पूछेगा सिविल, लेकिन आपको फिर भी पता होना चाहिए आईडी। पारुशिनी D3, तो D3 you will be seeing over here, ठीक है। Then Askini over here is related to Chanab, तो B is 1, A2 C4. Drishtavati is known to be as Chotang. Askini is known to be as Chenab. C. Vitasta, very important, Jhelum. पारुशिनी रिवर रावी, और झेलम को बैटल ऑफ वेयर पोरस एंड अलेक्जेंडर फॉर्ट, बैटल ऑफ हाइडस्पस एज पर ग्रीस, एज पर ग्रीक लैंग्वेज यू से झेलम एज हाइडस्पस। वैसी इंफॉर्मेशन सिविल सर्विसेज में नहीं आती, तो बस एक बार आपने देख लिया, आगे बढ़े, ठीक है। This question, important question from your art and culture, paintings. The early Malwa school of paintings. Malwa school of paintings were influenced by Shirazi school, while the early Mughal paintings initially followed Bizhad school. So over here you have to know about two schools, guys, Shirazi and Bizhad, and this is the right. So whenever you are studying, you have to note down about Shirazi school और Bizhad school के बारे में one line you try to find out. Early school Malwa school इनसे इंस्पायर्ड थी, और बेजाद स्कूल से तो मुगल पेंटिंग भी इंस्पायर्ड थी। मुगल पेंटिंग इनिशियली फॉलोड बेजाद स्कूल, राइट। तो ये देखना। सेकंड, द मेजर एक्सपोनेंट्स ऑफ बेजाद स्कूल इन इंडिया वर सैयद अली एंड अब्दुस सम्माद, दिस इज राइट। और कौन लेकर आया था इन्हें, विल बी सीइंग हुमायूं। दैट इज हाउ मुगल में काफी फ्लरिश हुआ बेजाद स्कूल, राइट। सो सी विल बी द आंसर, इंपॉर्टेंट। Which one of the following statements about Tolkappiyam is not correct? Not correct पूछा, Tolkappiyam. It is a treatise on grammar, right? कौन सी लैंग्वेज थी, तमिल, this is right. Was composed between 1st century to 4th century AD. This might be possible, ठीक है, तो आप इसको ले सकते हो। It was part of the Sangam corpus, right? It was composed by Panini. This is wrong, because Panini wrote what, Ashtadhyayi, Sanskrit grammarian he was. Or can you tell me the time period when he was existing? Very important, Sanskrit grammar Panini when he was existing. Tell me in the comments, guys. Let me see. Which one of the following books was authored by Harshvardhana? Harshcharita was written by
His court poet Bana Bhatt. Kadambari also written by Bana Bhatt. Gota Govind written by Jayadev. Ratnavali was written by Harshvardhana. Can you tell me other two dramas written by Harshvardhana in the comment box? Let me see how much you know. ये static है और ये आपको आना चाहिए. The King of Dance is a description of very important. Trimurti, no. Bodhisattva, no. Bronze Nataraj of the Cholas, again easy. King of Dance over here. The Cosmic Dance of Shiva भी बोला जाता है इसको, तांडव. Right? Which one of the following was not a feature of the art of painting in India in the 19th century? 19th century में कौन सा इसका पार्ट नहीं था पेंटिंग का? So answer of this will be this. The distinction between elite and popular art widened. This was not there, guys. इतना widen नहीं हुआ था during the 1800 to 1900 period. Otherwise, you will be seeing that this was the part of painting in India. Art was being produced open market. Shilpi became distinct from the karigar. Technique of oil painting was also developed. ये थे वहाँ पर, ठीक है? Consider the following historical events in India carefully. The Indian press failed to protest against the Vernacular Press Act of 1978. Indian press failed to protest. This is wrong. Rather, Indian press basically protesting against the VPA of Lord Lytton. The VPA was introduced by Viceroy Lytton against the council of his own law member, right? His own law member was saying that we should not introduce this, but उनके खिलाफ जाके उन्होंने VPA एक्ट पास किया. This is right. Answer will be B. Which of the historical pair of years an historical event is correctly matched? 1878, Second Anglo-Afghan War. This is right. Albert Bill controversy, 1885. This is 1882, guys. 1882. This is wrong. Fox India Bill. First of all, what is Fox India Bill? ये Fox India Bill is nothing but 1784 regulation. जो 1784 में regulation लाना था, उसी को Fox India, because one of the member was Fox. His surname was Fox, इसीलिए. तो 1784 में you will be seeing this. ठीक है, देखो कितने क्लोज दिए हैं. ये 1784 में नहीं था, 1784 में आप देखोगे और 83 में देखोगे बेसिकली. लॉर्ड कर्जन 1898 में नहीं, 1899 में देखोगे. कितना सिंपल फ्लग है. Albert Bill controversy 1882, 1883 में you will be seeing, and exactly a second Anglo-Afghan War 1878. So इन्होंने काफी close दिया. That's why it will become medium difficulty question. Who among the following is credited with the introduction and popularization of Dhrupad form of music? Dhrupad आप देखते हो in your Indian music, classical music, Dhrupad. तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन था पॉपुलर करने के लिए? राजा मान सिंह तोमर, वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, ऑफ ग्वालियर. और उसी के कोर्ट में यू विल बी सीइंग तानसेन वाज आल्सो देयर. सो आंसर विल बी राजा मान सिंह ऑफ तोमर. ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. I have added some information over here. You can see Tomar was a great warrior and great patron of music. One of the 9 gems of his court was Hindustani classical music musician Tansen II, and he was patron of Dhrupad genre of Hindustani classical music. Very important name. This is written in your Nitin Singhania also. ठीक है, मान सिंह तोमर, very important. So we are done with the geoscientist, CAPF. Now we are going to see the CDS question 2. ठीक है, CDS question पे नजर करते हैं. CDS 2 एग्जाम होते हैं, 1 and 2 within a year. 2 examination are conducted. दोनों को डिस्कस करेंगे. ठीक है. Which of the following statement about sculptures at Sanchi? Sanchi is very important, and I have shown you in the last PYQ 6 statements were given in some CAPF or CDS. ठीक है, अभी दोबारा सांची पे क्वेश्चन है. इन सम स्कल्पचर्स देयर इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ शाला भंजिका. शाला भंजिका का रिप्रेजेंटेशन है कहीं कहीं. तो शाला भंजिका आप देखोगे, इट इज अ टाइप ऑफ फीमेल फिगर. अगर नहीं देखा तो यू ट्राई टू सर्च इट राइट नाउ. आप देखो उसको. ठीक है, द फिगर ऑफ शाला भंजिका, दिस इज राइट. शाला भंजिका इज रिप्रेजेंटेड बाय अ वुमन ओवर हेयर सराउंडेड बाय लोटसेस एंड एलिफेंट. सांची में आप ये अंडर गजलक्ष्मी देखोगे. गजलक्ष्मी was basically surrounded by lotuses and elephants. So this is wrong. The Shala Bhanjika motive was not directly inspired by Buddhist ideas. This is also right, guys. Okay, let us move ahead. In which one of the following years was the first telegraphic connection established between Europe and India? यूरोप और इंडिया के बीच में पहली टेलीग्राफिक कनेक्शन. देखो इंडिया में तो 1851 में आया था. इंडिया में 1851, लेकिन यूरोप और इंडिया के बीच में स्टेब्लिश हुआ 1865. तो आंसर विल बी 1865. और ये कलकत्ता में हुआ था, डायमंड हार्बर में. यू विल बी सीइंग 1859, 1851 फर्स्ट टेलीग्राफिक लाइन, और फर्स्ट रेलवे लाइन 1853. ये आप लोगों को आई होप पता हो.
Among the following was the founder of Veer Shaivism movement in Karnataka. Very important. Basavana. और ये अपार, समंदरार, सुंदरार, who are these? Can anybody tell me in the comments which of the saints these are? Where have you studied them? अगर ये बहुत ही easy information है, सबको पता होनी चाहिए guys. But फिर भी सबको पता नहीं होगा, right? The ruins of Hampi were brought to light by which one of the following British officials of the East India Company? Already आपने देखा है हम्पी के ऊपर question. ठीक है, अगेन यू आर सीइंग ओवर हियर कोलन मैकेंजी, जेम्स प्रिंसअप, विलियम जोन्स और जेम्स रनल. तो ओवर हियर यू विल बी सीइंग कोलन मैकेंजी. और टाइम पीरियड अगर मैं पूछूं आपसे 1818 के अराउंड में यू विल बी सीइंग, राइट. इजी क्वेश्चन ऑलरेडी आस्क्ड बाय यूपीएससी. Which one of the following work was composed by Krishndev Rai on statecraft in Telugu? Over here अमुक्त मालव्य. और in Sanskrit I would say जामवती कल्याणम. ये संस्कृत में. तो A will be the answer. Again easy question. Easy question में हम ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, right? Which of the very important question from Mahajanpadas? Identify the Gana Sangh. Oligarchy identify करो. Magad no. Vaji was a oligarchy or not? Vaji was the confederacy. Avanti Kosala was not oligarchy, guys. ठीक है. Moving ahead, the provision of separate electorate for Muslims. Again ये easy question है. Moral Minto reforms आप यहाँ पर देखोगे. Easy part. Which of the following were the founder members of HSRA established in September 1928? HSRA की establishment जो हुई थी. Now see over here, भगत सिंह नाम सुना आपने बिल्कुल, चंद्रशेखर आजाद बिल्कुल सही, बटुकेश्वर दत्त बिल्कुल सही, सुखदेव. यहाँ पर आप ये सब नाम नहीं देख रहे हो, लेकिन आप भगत सिंह तो देख रहे हो and he is related to HSRA. जतेंद्र नाथ no. Over here he is not related. He is Jatinda. Ajoy Ghosh, he is communist leader. Panindranath Ghosh is responsible in 1942 Quit India movement, mainstream politics. So these will not be your answer. Only one will be your answer. Important, very good question, and question like this you can see in the civil services examination too. Again, who among the following did not belong to the No Changers? M.A. Ansari, Vitthal Bhai Patel, C. Raja Gopalachari was in the No Changers or not? He was in the No Changers. आप जो वो नाम देखते हो क्या बोलते हैं द स्वराजिस्ट पार्टी का नाम, एक तो मोतीलाल नेहरू, सी आर दास एंड वन मोर अजमल खान यूसी, राइट. तो इसमें एक और नाम ऐड करो. देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. स्वराजिस्ट में जो आपकी स्पेक्ट्रम में लिखा हो 3 नाम लिखे हैं, मोतीलाल नेहरू, सी आर दास एंड अजमल खान. ये 3 नाम तो लिखे हैं. अब एक और नाम जो आप पीवाईक्यू के हेल्प से ऐड कर रहे हो, दैट इज कस्तूरी रंगा अयंगर. तो आंसर क्या बन जाएगा? के आर अयंगर इज रिस्पॉन्सिबल बेसिकली इज अ स्वराजिस्ट. तो नो चेंजर्स कौन से हुए आपके? ये 3 नो चेंजर्स हुए और ये आपका आंसर हुआ. ठीक है गाइज, मूविंग अहेड. द हेडक्वार्टर्स ऑफ गदर मूवमेंट पार्टी वाज सैन फ्रांसिस्को ओवर हियर, नॉट स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी. स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में तो कौन पढ़ाया करते थे आपके? लाला हरदयाल, राइट. इजी क्वेश्चन. विच अब ये दोबारा से न्यूज़पेपर आपके पास आ गए हैं. अगेन न्यूज़पेपर की अभी जो लिस्ट बन रही है उसमें ऐड कर लीजिए. एडिटर इज नॉट करेक्टली मैच्ड. तो नवजीवन was by महात्मा गांधी, दिस इज राइट. महारत्ता was by बाल गंगाधर तिलक, दिस इज राइट. बंगाली सुरेंद्रनाथ बनर्जी, दिस इज ऑल्सो राइट. इन दोनों के बारे में तो आपको पता होगा. नवजीवन बाय महात्मा गांधी, राइट. वॉइस ऑफ इंडिया नॉट बाय गोपाल कृष्ण गोखले बट बाय दादा भाई नौरोजी. इंपॉर्टेंट गाइस. अगेन दिस इज द आंसर. वॉइस ऑफ इंडिया इज रिटन बाय दादा भाई नौरोजी. और पूछा गया है नॉट करेक्ट, है ना. तो गोपाल कृष्ण गोखले का नहीं है वॉइस ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर. बाकी 3 सही है. Again, which one of the following is not included in the terms and condition of subsidiary alliance by Lord Wellesley? The British would protect their ally. This is right. The ally was free to enter into agreement with other rulers or engage in warfare. This is wrong or not. ही पूछा है. फिर सही क्या है? The territory of the ally British armed contingent would be stationed, right. The ally would have to provide resources for the maintenance. This is also right. Easy question. ठीक है, easy question में will not be focusing much. अब जो पेपर 2 हुआ था सीडीएस का वो भी डिस्कस कर लेते हैं. इंपॉर्टेंट. मनीग्रामम एंड नाना देसी, ये क्या चीजें हैं दोनों? इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट. दीज आर गिल्ड्स ऑफ इंडियन मर्चेंट्स गाइस. एक और गिल्ड्स है आई वोलाई. ये चोलास के टाइम पे ये गिल्ड रहता था, आई वोलाई, राइट. द डच वर डिफीटेड बाय मार्तंड वर्मा ऑफ त्रिवंकोर. वेरी इंपॉर्टेंट एंड इजी. ऑलरेडी बहुत बार आप दे चुके हैं. कोलाचल. Can you tell me Battle of Pullallur happened in which time frame? Again, last class maybe I have asked you, right? I guess I have asked you. In which of the following schools of philosophy did Kumarila Bhatta and Prabhakara belong? Now this is a bit difficult, must be difficult for you, for all of you. अगर आपको पता नहीं है तो
कुमारिला भट्टा एंड प्रभाकर किस किस स्कूल से बिलोंग करते हैं? डायरेक्टली इसका आंसर यू ट्राई टू नो दैट दे बिलोंग टू दिस पूर्व मीमांसा। आप षड दर्शन पढ़ते हो, षड दर्शन में यू ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट मीमांसा टू, उसमें आप आर्ट एंड कल्चर में यू स्टडी दिस षड दर्शन गाइस, एंड ओवर देयर यू विल बी सीइंग अंडर मीमांसा, पूर्व मीमांसा में दीज टू पीपल are responsible for or basically belong to this particular philosophical group, right? Tolkappiyam is a work of grammar, this is right, ठीक है, बाकी ये नहीं है important, ठीक है, important मीन्स ये आंसर नहीं होगा, it is a grammar book. On the banks of which one of the following river was the ancient Mahishmati located? Important Mahajanpadas location based question. महिष्मती कहाँ पर, कौन से महिष्मती की लोकेशन सबसे पहले बताओ आप? ये एमपी में है, एमपी में कौन सी एक मेजर रिवर है? आप नर्मदा देखोगे, राइट? What was the Munjanik in the middle period? Very important. Munjanik was related to what? तो Munjanik को बोला जाता था catapult, ठीक है, जिससे पीछे से ले जाके and then you will be throwing it, catapult. Now again literary work, author important, very important. This type of question you are going to see in the civil services too. मृच कटिकम, ये आपने देखा हुआ लग रहा है, और इसका आंसर होगा आपके शूद्रक। तो बी पे जाओ और 3 मार्क करो, 2 जगह आपको ए और सी आंसर हो सकता है। कीरत अर्जुनियम सब लोगों को पता होता है, आई हैव आल्सो टोल्ड यू एन नंबर ऑफ टाइम, इट इज वन ऑफ द महाकाव्य। नाउ आई एम गिविंग यू, नाउ ओनली फ्यू पीपल विल एबल टू टेल मी, कैन यू टेल मी द अदर महाकाव्यास? 6 महाकाव्य हैं, उसमें से एक कीरत अर्जुनिया है। आप मेरे को बाकी 5 महाकाव्य कमेंट सेक्शन में बता सकते हो बिना देखे, जिसको याद हो, ठीक है, ट्राई टू टेल मी, it will be helpful for the others too, but it is important question। अब यहाँ से आने वाला है 2025 सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स में, आई एम ऑलरेडी टेलिंग यू राइट नाउ, ठीक है। तो आपका कीर्तर अर्जुना बाय भारवी, ठीक है, भाषा ऑलरेडी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सी का हो गया आपका आंसर 4, तो C4 देखो सबको पता होता है, इसलिए इन्होंने यहाँ पर 3 और 4 में आपको कंफ्यूज कर रखा अगेन, क्योंकि उन्हें पता है घटोत्कच और रावणवध नहीं पता होगा आप लोगों को इतना। So Ravanavadh is related to Bhati and Doot Ghatotkacha is related to Bhasa. So A का हो गया 2 and D का हो गया आपका 1. So answer will be C. very important। यहाँ पर ये 2 बहुत ही important है, भाटी का भी बोलते हैं इनको, एंड भाषा, इन दोनों को भी याद रखो। भाषा का एक और बुक कैन यू टेल मी विच हैज बीन आस्क्ड इन सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स आल्सो? भाषा's one book। Again easy question, battle of 10 kings fought in the banks of which river? Parushini, ठीक है। Bengal famine of 1769-70 was worsened by locust attack, rat infestation, high level of taxation. C will be answer, easy। Which one of the following is not the work of Ashok Ghosh? Again very important। Ashok Ghosh has written Buddha Charita, आप हर किसी को पता होता है, लेकिन सरीपुत्र प्रकरण कम लोगों को पता होगा, दिस इज ऑल्सो रिटन बाय अशोक घोष। सुंदर नंदा, इट इज ऑल्सो रिटन बाय अशोक घोष। सो द आंसर विल बी द रिमेनिंग वन, दैट इज योर मंजूश्री मूलकल्पा। कैन यू टेल मी द ऑथर ऑफ मंजूश्री मूलकल्पा इन द कमेंट सेक्शन? टेल मी गाइस, एनलाइटन अदर पीपल टू। व्हिच अमंग द फॉलोइंग आर चार्वाक स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी? चार्वाक स्कूल ऑफ फिलॉसफी कौन सी इसमें वो होता है, राइट? तो वैशेषिका तो अपने आप में एक फिलॉसफी है, राइट, ठीक है, और न्याय भी अपने आप में एक फिलॉसफी है, तो 2 नहीं हो सकता, आंसर इज 1 and 3। 1 and 3 धूर्ता एंड सशक्तिका आर रिलेटेड टू चार्वाक स्कूल ऑफ फिलॉसफी। 18 से 14 सेंचुरी के बीच में संस्कृत टेक्स्ट में विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स वाज यूज्ड फॉर मुस्लिम्स? देखो उस टाइम पे मुस्लिम्स को मुस्लिम नहीं बोला जाता था, इस मिडिवल सेंचुरी के टाइम फ्रेम पे उनको बोला जाता था तुरुष्का, ताचिका एंड पाराशिका, ये 3 नाम से इन्हें डिनोट किया जाता था, ठीक है। तो 1 2 3 विल बी योर आंसर। कर्दमाका की नहीं बोला जाता, कर्दमाका बोला जाता था वेस्टर्न क्षत्रप के लोगों को, शाकाज को, जो आए थे 1st सेंचुरी से 3rd 4th सेंचुरी एडी में। ट्राई टू अंडरस्टैंड, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टर्मिनोलॉजी बेस्ड। In the citadel and lower town of areas, one of the following Harappan cities have several large cisterns and reservoir. Reservoir देखते ही आपको क्या ध्यान में आना चाहिए? धोलावीरा। तो आंसर विल बी धोलावीरा। Consider the following statements about cavalry warfare in India. The iron stirrup made it possible for the armed warrior to sit firmly on a horse without falling off. This is right.
The iron stirrup also allowed a cavalry charge with lances held tightly to the body without the rider being thrown off by the shock of impact. This is also right, so answer will be C. दोनों statement आपकी सही है guys, right? British policy towards Afghanistan in the first half of the 19th century. First half of the 19th century means 1800 to 1850. और पहली वॉर कब हुई थी? First half of the क्या हुआ था उसमें? What they wanted to do? Strengthening Afghanistan as a buffer against Russia. This is right. Weakening Russia influence in Afghanistan but not promoting a strong Afghanistan either. Promoting Russian influence. This is wrong. Annexing Afghanistan as a directly wrong. So the most appropriate answer is strengthening Afghanistan as a buffer against Russia. Over here you will be seeing. ठीक है. Who among the following usurped power in Kanyak Bhuj after the death of Harsha? अच्छा, Harsha, when Harsha ruled, can you tell me from which to which century? When Harsha ruled, मतलब which to which year? You will be finding 609 to 648. Sorry, 606 to 648 AD. I have told you, you have to remember certain important personalities time period as it is while learning the concepts. जब आप base बना रहे हो अपना, कुछ tips पे होना चाहिए. My students will be having these things on tips. तो यहाँ पर इनके बाद आता है अरुण शवा. ठीक है, ये आपको देखने को मिलेंगे. अगेन आप लोगों को ये पॉइंट सिर्फ लिखना है, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट. ये पॉइंट कुछ रैंडम होते हैं, ठीक है, और इन एग्जाम्स में ज़्यादा आते हैं, CDS CAPF में. डोंट वरी अबाउट सिविल सर्विसेज, ठीक है. बट अगेन आप अपना नॉलेज बेस बढ़ा रहे हो, तो क्वेश्चन जरूर हेल्प कर रहे होंगे. द लेजेंड ऑफ प्रहलाद एंड हिज फादर हिरण्यकश्यप was first set out in the, now directly you have to know this, that this has been highlighted in Vishnu Purana guys, ठीक है. Which one of the following statement on the issue of ownership according to Smriti literature is not correct with respect to the inheritance they are talking about? Now over here you see the paternal estate was to be divided equally among sons. This is right. Women were allowed to retain the gifts they received on the occasion of their marriage. This is right. The gifts to women on the occasion of their marriage are known as Stridhan. This is right. The Stridhan was not inherited by the children without the permission of the husband. This is wrong guys. So answer wrong find out करने का था. So this is over here. स्त्रीधन में पूरा पूरा हक वुमेन का होता है, ठीक है. वुमेन will be deciding. Among the following countries, where did the ideas of social market economy emerge in 1950s? Okay, this question is from economics. तो economic में हम इसमें handle करेंगे. If you want me come up with the economic questions too, I'll be coming up with the economic question book wise, ठीक है. उसको उसमें हैंडल करते हैं, गलती से आ गया होगा. Which one among the following Indian thinker first spoke about food for work programs to counteract the effects of famine? So famine के ऊपर किसने लिखा था? You will be seeing Kautilya in his Arthashastra will be writing about these two. Important guys. So these were the question of CDS, CAPF and geoscientists we have tried to cover of history of 2022 year. Now remaining part is 2021 and 2020. छोड़ना नहीं है, try to understand again. आप अपना 30 मिनट एंड 1 आवर, ज़्यादा से ज़्यादा किसी वीडियो में 1 घंटा भी लग सकता है, लेकिन आई वुड रिकमेंड आप 1.5x स्पीड पे देख रहे होंगे तो या नियरली 30 मिनट्स आपको लगेंगे. और आपका नॉलेज आप ये समझो कि कहीं ना कहीं आप यूपीएससी के टर्म्स में सोच रहे हो, चीज़ें समझ रहे हो, आप एनरिच कर रहे हो इन्फॉर्मेशन को, राइट. तो 3 और लेक्चर हैं एंड इसको कवर करो, हिस्ट्री विल बी गुड टू गो. और जो आपका स्टैटिक है वो तो पढ़ो ही पढ़ो, वो बार बार एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम आपने ऑलरेडी पढ़ ही लिया है, लेकिन आप भी देख रहे हो क्वेश्चन कुछ ना कुछ रैंडम आ जा रहे हैं, राइट. और PYQs की अहमियत आपको मैं बता रहा हूँ that आप out of 100 question in the civil services examination 3 to 4 question will be solved by PYQ across different examination or across different subjects. I'm saying 3 से 4 question ऐसे होंगे जो PYQ के बेस पे सॉल्व होने वाले, ठीक है. Alright guys, then I'll be ending the video. I'll be meeting you in the next part. I hope if you like it, do mention it, and if you're following it, do mention it guys. Take care.